دوستو پہلی چنگاری ناول کی 263 ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ اب روز آپ کو ایپیسوڈ ملے گی، اب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ دکھاؤ تاکہ میں تمہارے لیے روز مزے کی ایپیسوڈ بنا سکوں۔ چلتے ہیں آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ ابو کی جھاڑ سن کر میں ابو سے بحث کرنے کی بجائے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ابو غصے سے بولے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری بات کا جواب دینے کی بجائے تم چہرہ نیچے کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بتاؤ کہ تم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں۔ میں نے کہا، ابو آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کسی کو مارنا کیوں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا کسی کی جان لے سکتا ہے؟ ابو بولے، مجھے تو لگتا ہے تم یہ سب کر چکے ہو جو اتنے مطمئن ہو کر بندے مارنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ابو میں نے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے شادے اور اس کے ساتھ ہی کریں گے۔ ابو بولے، تم بھی اسی کے ساتھ ہی ہو۔ میں نے کہا، ابو شادہ میرا دوست ہے، آج ہم جس مشکل سے نکلے ہیں اسی کی بدولت نکلے ہیں، ورنہ وہ لوگ صوفی لوگوں کو جہاں لے گئے تھے میں تو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم ان کو واپس لا سکیں گے۔ رات کو آپ کو ساری تفصیل تو بتائی تھی کہ کیسے شادے کے بھیجے ہوئے بندوں نے میری مدد کی تھی، اور سبیحہ خاتون کا بھی شادے کی وجہ سے میرے سر پر ہاتھ ہے، ورنہ اتنی بڑی شخصیت کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے شادے کے بندے ہی کریں گے۔ ابو بولے، چلو میں تمہاری بات مان بھی لوں، پھر بھی تم بھی تو ان کے ساتھ ہی جاؤ گے نا؟ میں نے ابو کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے کیوں جانا ہے؟ میں تو بس ان لوگوں کا بندوبست کروا کر اپنی پرانی زندگی جینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے میں بے فکری سے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ میری باتوں کی تائید کرتے ہوئے بولا، ابو یاسر صحیح کہہ رہا ہے، اگر ان کے جو لوگ بچ گئے ہیں وہ لازمی یاسر سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کریں گے، اور ایسے حالات میں ہمیں بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابو بولے، مگر پتر مجھے اس کی فکر ہے کہ کہیں وہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اوبھا بولا، اسی نقصان سے بچنے کے لیے ان کو ٹھکانے لگانے کی یاسر بات کر رہا ہے۔ ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ جو یاسر کہہ رہا ہے اس کی بات مان لے۔ آخر کب تک یوں چھپتے چھپاتے زندگی گزاریں گے؟ نہ اپنی مرضی سے بندہ باہر جا سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے۔ بھا کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی کہ بھا کو اپنے ملنے ملانے والوں کی فکر پڑی ہے، کیونکہ شادے نے اسے سختی سے گھر رہنے پر پابند کیا تھا، اور جس سے ملنے کے لیے بھا اتنا بے چین تھا اس کے بارے میں بھی مجھے معلوم پڑ چکا تھا۔ خیر بھا گھر کا بڑا تھا، اس لیے اس کی باتیں سن کر ابو خاموش ہو گئے، مگر پھر بھی ابو کے چہرے پر بدستور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ابو کو پریشان دیکھ کر میں اٹھ کر ابو کے پاس بیٹھ گیا، ابو کو کندھے پر بازو رکھ کر دوستانہ انداز میں بولا، ابو پلیز اب پریشان نہ ہو، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے مسکراتے ہوئے صوفی کی طرف دیکھ کر کہا، اور ویسے بھی ابھی تو میری شادی ہونی ہے، پھر اپنے دادا ابو بننا ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا ہے۔ میری بات سن کر سوائے صوفی کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ صوفی مجھے گھوری ڈال کر شرماتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ابو صوفی کو آواز دیتے ہوئے بولے، صوفی پتر تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہہ کر ابو مجھے گھور کر ڈانٹتے ہوئے بولے، بے شرم انسان، بات کرنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ میری بیٹی پاس بیٹھی ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولا، میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ابو بولے، چل پتر پھر تیار ہو جا، کرتا ہوں تیرا کچھ۔ ابو کی بات سن کر ماہی شوخی سے بولی، بالکل انکل، جب یاسر بھائی کی شادی ہو جائے گی تو یہ خود ہی سدھر جائیں گے۔ ماہی کی بات سن کر انٹی ماہی کو ڈانٹتے ہوئے بولی، چپ کر بے شرم، پہلے کون سا یاسر پتر بگڑا ہوا ہے؟ ماہی بولی، میرا مطلب کہ یاسر بھائی کے جو بدماش ٹائپ کے دوست ہیں ان سے یاسر بھائی کی توجہ ہٹ جائے گی۔ ماہی کے منہ سے اپنے دوستوں کے متعلق ایسے الفاظ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں خود پر کنٹرول کر گیا، جبکہ میری جگہ انٹی سین لگاتے ہوئے کہا، جن کو تم بدماش کہہ رہی ہو انہی کی وجہ سے تم زندہ سلامت واپس آ گئی ہو۔ اتنے میں بھابھی دونوں ماں بیٹی کے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑیں انٹی، ماہی ابھی بچی ہے، اس کے منہ سے بات نکل گئی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کے بعد ہی یاسر پر گھر کی ذمہ داری پڑ جائے گی اور اس کی توجہ گھر پر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بھابھی ماہی کی طرف دیکھ کر بولی، ماہی آؤ کچن میں چلتے ہیں، یاسر نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بھابھی ماہی کو اپنے ساتھ لے کر کچن کی جانب چلی گئی۔ ماہی کے جانے کے بعد انٹی بولی، یاسر پتر ماہی کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں، اس کم عقل کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ میں تڑپ کر بولا، ارے انٹی اب ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟
अब मेरी माँ है, मुआफी मांग कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है। इस दौरान फोन की घंटी बजी तो मैं चौंक कर उठा, फोन की तरफ बढ़ा। रिसीवर उठाकर हेलो क्या तो दूसरी जानिब से सीधी गाली मिली। साथ ही शादा गुस्से से बोला, बेगैरत, बेशर्म, बेवफा। कोई और भी तुम्हारा मुंतजिर था। मैं छुपते हुए बोला, यार मैं अभी तेरे पास आने का सोच ही रहा था। कुछ देर पहले सोकर उठा हूं, अभी नाश्ता करके तेरी तरफ ही निकलना था। शादा बोला, बस कर ड्रामेबाज, रात को तुम आए हुए हो घर, अगर कम अज कम मुझे कॉल तो कर सकता था। ये मैंने कहा, यार घर आते ही घर वालों से मिलकर इतना इमोशनल हो गया था कि बस ये बात जहन में नहीं रही। वैसे भी मैंने सोचा था कि तुम्हें मिलकर सरप्राइज दूंगा। शादा बोला, सरप्राइज देने वालों ने तुमसे पहले ही सरप्राइज दे दिया था। ये मैंने कहा, अच्छा यार मुआफी दे दे, गलती हो गई। मैं बस 15 मिनट में तेरे पास आ रहा हूँ। शादा बोला, चल जल्दी पहुंच, मैं डेरे पर ही हूँ। फिर मुझे भी एक काम से निकलना है। ये कहकर शादे ने रिसीवर रख दिया। मुझे अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था कि कम अज कम शादे को कॉल करके अपनी वापसी की इत्तला ही दे देता। भा बोला, किसका फोन था। मैंने कहा, शादे का था। नाराज हो रहा था कि अपने आने की मुझे इत्तला तक नहीं दी। अबू बोले, बात तो उसकी ठीक है, तुम्हें चाहिए था कि टाइम निकाल कर इसे कॉल कर देते। ये मैंने कहा, बस गलती हो गई। मैंने सोचा था कि सुबह जाकर इससे मिलूंगा और उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा। भा बोला, चल खैर है, अभी नाश्ता करके चले जाना। मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ जी हाँ करके मैंने इसे कहा है कि अभी तेरी तरफ आ रहा हूँ। कुछ देर में नाश्ता करके मैं कमरे में गया और इंडिया से खरीदे हुए कर्ता पजामे में से सफेद रंग का कर्ता पजामा निकाल कर पहन लिया। नीचे से पहना दाढ़ी पर नोकदार मूंछें पर जेल लगाकर जब काला चश्मा पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ तो खुद को अपनी ही नजर लगने का अंदेशा हुआ। तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले भाभी की मुझ पर नजर पड़ी। भाभी मुझे देखते ही सोफे से स्लो मोशन में उठने लगी। भाभी का रिएक्शन देखकर मैं घबराकर उधर उधर देखने लगा कि कहीं सूफी तो वहां मौजूद नहीं। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि सूफी अभी तक कमरे से नहीं निकली थी, जबकि माही भी सूफी के पीछे कमरे में जा चुकी थी। वहां आंटी भाभी गुलजेब मौजूद थी, अबू और भा वहां मौजूद नहीं थे। इससे पहले कि आंटी भाभी की हरकत को महसूस करती, मैंने इशारे से भाभी को होश दिलाया और आंटी की मौजूदगी का एहसास दिलाया। गुलजेब भी आंखें फाड़े मुझे देखे जा रही थी, इसलिए इसकी तवज्जो भी भाभी की तरफ नहीं हुई थी। जबकि आंटी की पीठ मेरी जानिब थी, इस वजह से आंटी को मेरी आमद की खबर नहीं हुई थी। मेरा इशारा पाते ही भाभी हड़बड़ाकर अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए बोली, यासिर तुम जा रहे हो। भाभी की बात सुनकर आंटी ने भी मोड़कर मेरी जानिब देखा और साथ ही मेरी बलाएं लेते हुए दुआएं देने लगे। मैंने कहा, जी भाभी, मैं शादे से मिलकर कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। भाभी बोली, ध्यान से जाना। मैंने कहा, जी मैं गिन मैनों को साथ लेकर जाऊंगा, और हाँ मुझे गांव के घर की चाबियां ला दें ताकि जाते हुए घर का भी चक्कर लगा आऊं। काफी अरसा हो गया घर के हालात का जायजा नहीं लिया। मेरी बात सुनकर भाभी मुझे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, यासिर तुम गांव तो जा ही रहे हो, अगर मुझे भी साथ लेते जाओ। मैंने घर से अपनी कुछ चीजें लेनी है। मैंने कहा, भाभी मैंने सीधा डेरे पर जाना है, वहां शादे से मिलकर फिर घर जाऊंगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले घर छोड़ देना, इसके बाद तुम डेरे पर चले जाना, तब मैं जरूरी सामान निकाल लूंगी। वापसी पर तुम मुझे अपने साथ ले आना। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता पीछे से भा की आवाज आई, यासिर अपनी भाभी को साथ ले जाओ। कितने दिनों से मेरा सर खा रही है, मेरा तो चक्कर नहीं लगा। तुम अगर जा रहे हो तो इसको भी ले जाओ। भा की बात सुनकर मजबूरना मुझे हामी भरनी पड़ी। भाभी खुशी से मचलते हुए कमरे से चाबियां लेने चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाभी वाकई अपनी मतलूबा चीजें लेने जा रही है या फिर किसी प्लानिंग के तहत मेरे साथ जाने का प्रोग्राम बना रही है। अगर भा की गवाही शामिल ना होती तो मुझे 100% भाभी की नीयत खराब होने पर यकीन हो जाना था, मगर भा ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी थी कि शाइस्ता भाभी पहले से गांव जाने का इसरार कर रही थी। कुछ ही देर में भाभी चादर ओढ़कर कमरे से निकली और मुझे चलने का कहा। मैंने गिलजेब की तरफ देखकर कहा, गिलजेब तुम्हें तो अपने घर से कुछ नहीं लेना, मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, इसी बहाने अपने घर का चक्कर लगा लेना। भाभी जल्दी से बोली, मेरे ख्याल से गिलजेब का अभी गांव जाना ठीक नहीं है, थोड़े हालात बेहतर होने दो फिर इसे ले जाना। साथ ही भा ने भी भाभी की बात की तायीद कर दी।
गिलजेब बेचारी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चंद लम्हे सोचने के बाद ठीक है कहकर ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर गैराज में आया। भाभी भी मेरे साथ ही बाहर आ गई। पहले तो मैं अपनी कार में जाने लगा, फिर कुछ सोचकर मैं अपनी गाड़ी की बजाय वैगन में सवार होकर 2 गिनमैनों के हमरा गांव की तरफ रवाना हो गया। भाभी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी के अंदर मैं और भाभी ही मौजूद थे, जबकि गिनमैन पीछे डाले में बैठे हुए थे। घर से निकलकर कॉलोनी के मैन गेट की तरफ गाड़ी मोड़ी तो भाभी ने अचानक मेरे हाथ पर हाथ रखकर मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, यासिर सफेद कुर्ता पजामे में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें देखकर मैं तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। अगर तुम कमरे में होते तो तुम्हारा माथा चूम लेती। बेशक हम दोनों के बीच किसी किस्म का पर्दा तकल्लुफ वाली बात नहीं रह गई थी, फिर भी ना जाने क्यों भाभी का यूं बेतकल्लुफ होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि भाभी इस वक्त हाफ वाइट कलर के सूट में कमाल की दिख रही थी, फिर भी मैं भाभी को इग्नोर कर रहा था। भाभी की बात सुनकर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी मोहब्बत है, वरना मुझे तो खुद में कोई खास बात नहीं लगती। भाभी बोली, यासिर तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी परेशान रहने लगी थी। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी कि ना जाने तुम किस हाल में होगे। सारी सारी रात जागती रहती थी। मैं तो रात को ना जाने कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाई थी। अगर कैसर घर पर ना होता तो मैंने रात को ही तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी। भाभी हर लिहाज से मुझे माजी में ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं माजी में जाने से परहेज कर रहा था। भाभी के जज्बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने कहा, जिंदगी में कभी कभार ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाता है। भाभी बोली, बिल्कुल, मगर ऐसे हालात में जब कोई दिल के करीब शख्स दूर हो जाए तो फिर एक एक लम्हा अजाब गुजरता है। भाभी की बात सुनकर मैंने चौंक कर भाभी की तरफ देखा कि ये तो कुछ ज्यादा ही सर पर सवार होने की कोशिश कर रही है। मेरे यूं चौंक कर देखने पर भाभी मेरी आंखों में गौर से देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों चुप हो गए? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैं भाभी के चेहरे से नजरें हटाकर सामने देखते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे आपकी बात क्यों बुरी लगनी है? मैं तो वैसे ही आपको देख रहा था। भाभी बात को तोल देते हुए बोली, यासिर तुम्हें भी मेरी याद आई थी कि नहीं? मैंने घुमाकर जवाब देते हुए कहा, जब कभी फुर्सत मिलती तो सबकी याद आती थी, मगर बेशतर वक्त मैं ऐसे मुश्किल हालात में फंसा रहता था कि अपने आप का भी होश नहीं रहता था। इसी दौरान जब मैं रोड से गांव की तरफ जाती सड़क पर गाड़ी डाली तो एकदम से मेरा ध्यान भाभी से हट गया। मुझे यूं लगने लगा जैसे न जाने कितनी अरसे बाद अपने गाँव लौटा हूं। हर शय को गौर से देखे जा रहा था। गाँव की बस्ती शुरू हुई तो साथ ही आंटी फरा, आंटी फौजिया और इसकी दोनों बेटियां उज़्मा और नसरीन का ख्याल दिमाग में गर्दिश करने लगा। साथ ही बड़ी मुद्दत बाद सदक की भी याद आ गई, जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था जब से इसकी शादी हुई थी। इसके बाद इससे मिलना तो दूर की बात, देखना भी नसीब नहीं हुआ था। गांव में दाखिल होकर डेरे पर जाने की बजाय मैंने गाड़ी अपनी गली की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में गिल्ली में दाखिल होकर मैंने घर के गेट के सामने गाड़ी रोककर भाभी को कहा, अगर किसी की हेल्प की जरूरत है तो आंटी फौजिया इसकी बेटियों में से किसी को बुला लेना। भाभी बोली, नहीं, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं, बस तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना, तुमसे एक जरूरी काम भी है। ये भाभी की बात सुनकर मैं चौंक कर बोला, कौन सा काम? भाभी लहजे में रोमानवी अंदाज में मेरी गाल पर चुटकी काटते हुए बोली, जब आओगे तब बताऊंगी ना। ये कहकर भाभी गाड़ी से उतरकर गेट की जानिब चली गई। जब तक भाभी घर में दाखिल नहीं हुई मैं वहीं रुका रहा। इस दौरान गिल्ली में चंद एक बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के अलावा गिल्ली में कोई भी नहीं था, इसलिए किसी बड़े अफराद की मुझ पर नजर नहीं पड़ी, वरना चंद लम्हों में आंटी फौजिया के घर मेरी आमद की खबर पहुंच जानी थी। भाभी ने जब अंदर दाखिल होकर गेट बंद कर लिया तो मैं गाड़ी बैक करके गिल्ली से बाहर निकलकर डेरे की जानिब चल पड़ा। गिल्ली से निकलकर डेरे तक भाभी के बारे में ही सोचता रहा, जहां एक तरफ भाभी से लाताल्लुकी रखने की कोशिश में था। इसी कश्मकश में मुब्तला पता ही नहीं चला जब डेरे का गेट आ गया। डेरे के इहाते में गाड़ी पार्क करके गाड़ी से नीचे उतरा तो डेरे के इहाते में मौजूद पुराने साथियों ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल करते हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। शादे से गिले मिलने लगा तो मिलने से पहले ही इसने आदत से मजबूर बड़ी सी गाली दी और साथ ही मेरा माथा चूम कर मुझे बाजुओं में किस लिया। कुछ देर गिले शिकवे करने के बाद हम हवेली के अंदर जाकर बैठ गए।
मैंने शादे से माजू जमशेद और जुबैर के बारे में पूछा तो शादा बोला, वो अपने घरों में ही है। तेरी तरह उन बेगैरतों ने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा, अभी तक घर वालों से मिलकर अपनी उदासी खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा, फिर तुम्हें किसने बताया कि हम वापस आ गए? शादा बोला, मुझे तो एक दिन पहले ही खबर मिल गई थी कि तुम लोग खैरियत से कल रात को वापस आ रहे हो। जब तुम सबीहा खातून के पास पहुंचे थे, इसके कुछ ही देर बाद मुझे इत्तला मिल गई थी कि तुम सब खैरियत से पहुंच गए हो। शादे की बात सुनकर मैं समझ गया कि सबीहा खातून ने ही शादे को हमारी आमद की इत्तला दी है। शादा मेरी रान पर हाथ मारते हुए बोला, सुनाओ फिर कैसा रहा सफर? मैंने कहा, बहुत मुश्किल भी था और बहुत इंजॉय भी किया। मुजाहिदीन के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर जहांजेब खान के साथ गुजरा हुआ यादगार वक्त में सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जिस तरह उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरा साथ दिया, उनका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं झुका सकता। शादा बोला, तेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हें जहांजेब खान जैसे कमांडर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। ऐसे लोगों की कुर्बत नसीब वालों को मिलती है। मैंने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जहांजेब खान ने मुझे जितना प्यार दिया और मुझ पर जितनी तवज्जो देकर बहुत थोड़े अरसे में मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये इसके बड़े पिन का सबूत है। उनके साथ रहकर मैंने मौत से खेलना सीखा है, हर मुश्किल से मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करना सीखा। शादा बोला, शायद किस्मत ने तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी बहाने से इन लोगों से मिलवाना था। मैंने कहा, बिल्कुल, वरना मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इंडिया जाकर तेरी भाभी को और दूसरी दोनों लड़कियों को उनकी कैद से आजाद करवा कर सही सलामत वापस ला सकता हूं। और इस सब का सहरा तेरे सर पर है। तेरे जैसा यार हो तो फिर दुश्मन लाख गन्ना ताकतवर हो, इसे धूल चटाने में देर नहीं लगती। शादा बोला, बस कर, अब ज्यादा मस्के मत लगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। मैंने कहा, तेरे इस फर्ज ने मुझे खरीद लिया है। शादा मुझे घूरते हुए बोला, बकवास बंद कर, कभी भी खुद को किसी के सामने कमतर मत जाहिर करवाना, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। वैसे भी तुम मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाई हो, और भाई की इज्जत अपनी इज्जत होती है, इसलिए हमारा ताल्लुक बराबरी का है। शादे की बात सुनकर मैं लाजवाब हो गया। शादा मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, यासिर, मैं चंद बातें तुमसे करने लगा हूं, उनको अपने प्ले बांध लेना। मैं चौंक कर शादे की जानिब देखते हुए बोला, हुक्म कर मेरी जान, तेरी हर बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर होगी। शादा बोला, यासिर, ये बात जहन में रख लो कि अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। तुम अब एक आम इंसान नहीं रहे और न ही तुम आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें दुकान खत्म करना होगी और दूसरा तुम्हें हर वक्त चुप न रहना होगा। इसलिए तुम्हें जब भी घर से निकलना हो एहतियात से निकलना होगा। तुम्हें शायद यही लग रहा होगा कि तुमने भाभी और दूसरी दोनों लड़कियों को आजाद करवा लिया है तो तुम्हारे सर पर से खतरा टल गया है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर मौत साए की तरह मंडलाती रहेगी। तुमने मगरमच्छों के मुंह में हाथ डालकर उनका न सिर्फ नवाला छीना है, बल्कि इन लोगों को जानी व माली नुकसान पहुंचाया है, और वो तुम पर दोबारा हमला करने की ताक में रहेंगे। एक दो राय एजेंट अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं और शायद उनमें से कुछ हमारे शहर में भी मौजूद हों। दूसरा, जिन पठानियों के ठिकाने तबाह किए हैं, उनके भी जो लोग जिंदा बच गए हैं, वो भी तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। इसलिए मैं तुम्हें सख्ती से समझा जा रहा हूं कि खुद को कभी भी गैर महफूज मत समझना। शादे की बात सुनकर मैंने कहा, यार, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, मगर ये दुकान छोड़ने वाला मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर दुकान छोड़ दी तो मैं घर कैसे चिल्लाऊंगा। शादा बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास पैसा खुद चल कर आएगा, और इतना पैसा आएगा कि तुम खर्च करते थक जाओगे। शादे की बात सुनकर मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? मैं ये बात नहीं समझा कि घर बैठे पैसा कहां से आएगा। शादा मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, परसों जब तुम सबीहा खातून के पास जाओगे, तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें उधर मिल जाएंगे। अभी मैं तुम्हें जितना बता सकता था बता दिया है। मुझे तुम पर यकीन है कि मेरी बातों को संजीदगी से लोगे। शादे की बात सुनकर मैंने कहा, ओके जानी, जो तेरा हुक्म, बाकी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि किसी तरह अपने दुश्मनों का सफाया करके फिर से अपनी पुरानी आजादाना जिंदगी बसर कर सकूं। शादा बोला, ये इतना आसान काम नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। मैंने कहा, अगर ये नामुमकिन भी होता तो मैं इसे मुमकिन बनाकर अपने रास्ते की हर दीवार गिरा देता। शादा मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला,
ये की ना मर्दों वाली बात है। बस मुझे तुमसे यही चीज चाहिए थी। अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी कदमों में लाने में देर नहीं लगती। ओ मैंने कहा, तेरे साथ बचपन गुजारा, इसलिए कुछ तो तेरा असर भी मुझ पर है। शादा कहा लगाकर हंसते हुए बोला, चल छोड़ उन बातों को, ये बता इंडिया में कैसे पहुंचे और वहां जाकर क्या कुछ करते रहे। मैंने मुस्कुराते हुए शादे को कश्मीर जाने से इंडिया में दाखिल होकर कार्रवाइयां करने और फिर हर दफा कैसे बच निकलने के वाकयात सुनाता रहा। बातों के दौरान मैंने शादे को बताया कि 2 दिन बाद सबीहा खातून के यहाँ पार्टी है, तुमने भी मेरे साथ जाना है। शादा बोला, हाँ मुझे भी बुलवाया है। देखूंगा, अगर फ्री हुआ तो तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा, वरना माजू और दूसरे दोस्त साथियों को लेकर तुम चले जाना। मैंने कहा, सबीहा खातून ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ताकीद की थी कि तुम्हें लाजमी साथ लेकर आऊं। शादा बोला, यार चौधरी साहिब का एक जगह सियासी पिंगा चल रहा है, अगर मुझे उधर जाना पड़ गया तो फिर मैं नहीं जा सकता। अगर मैं इधर न गया तो फिर हम इकट्ठे ही जाएंगे। मैंने कहा, कैसा पिंगा पड़ गया है? सब खैरियत तो है? शादा बोला, मुखालिफ सियासी पार्टी जो पिछले इलेक्शन में चौधरी साहिब से हार गई थी, 4-5 दिन पहले एक पंचायत में उनके बंदों ने चौधरी साहिब से बदतमीजी की थी। इस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मजबूरना हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ी, वरना उधर ही मैंने फैसला कर देना था। इस वक्त की हमारी खामोशी को लेकर वो लोग इस वक्त औकात से बाहर हो गए हैं कि परसों उन्होंने पास वाले गांव में चौधरी साहिब की तैयार फसल को ट्रैक्टर से खराब किया है। सियासी मजबूरी की वजह से चौधरी साहिब लड़ाई से परहेज करते हुए वक्ती तौर पर इस मामले को पंचायत के जरिए हल करना चाहते हैं, मगर मुखालिफ पार्टी पूरी कोशिश में है कि खून खराबा करके चौधरी साहिब की पोजीशन कमजोर की जाए। जिस दिन सबीहा खातून ने पार्टी रखी है, इसी दिन चौधरी साहिब की पंचायत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सबीहा खातून के यहाँ जा पाऊंगा। शादे की बात सुनकर मैं तशवीश का इजहार करते हुए बोला, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमसे पिंगा ले। शायद वो पिछली दफा की चितरोल भूल गए हैं। अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो फिर मैं भी सबीहा खातून से माजरत कर लूंगा और तुम्हारे साथ पंचायत में चल लूंगा। फिर जो भी वहां हुआ देख लेंगे। वैसे भी अब बंदे फड़काने की मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई है। शादा मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, वो नहीं जानी, अभी बात यहाँ तक नहीं पहुंची। अगर मामला बंदे फड़काने का होता तो तुम मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो, अब तक मैं कटाकिट्टी निकाल चुका होता। मामला सियासी है और सियासी मामले बड़े पेचीदा होते हैं। ऐसे सियासी मामलात को लड़ाई की बजाय सियासत से ही हल करना होता है। सियासत ऐसी गंदी चीज है कि इसमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। वैसे भी सबीहा खातून की पार्टी में मेरी शमूलियत इतनी अहम नहीं जितनी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें माजू लोगों को साथ लेकर लाजमी जाना होगा। शादे की बात सुनकर मैंने मजीद 2-3 दफा शादे के साथ पंचायत में जाने का इसरार किया, मगर शादे ने मुझे सख्ती से मना करते हुए सबीहा खातून के यहाँ जाने का हुक्म दिया। मजीद कुछ देर बैठने के बाद मैं शादे से इजाजत लेकर हवेली से निकलकर गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव में दाखिल होकर मैं अपनी गिल्ली में दाखिल हुआ। पहले भाभी साथ थी, इस वजह से भाभी ने मेरा ध्यान बटा रखा था, मगर अब अकेला होने की वजह से मेरी फेस गुल्प अलग थी। घर के गेट के सामने गाड़ी रोककर जब गाड़ी से उतरा तो गिल्ली में आते जाते 2-3 वाकिफ लोग रुककर मेरी जानिब हैरानगी से देखने लगे। करीब आकर बड़े एहतराम से मिले। सफेद करता पजुम्मा और काले रंग का चश्मा लगाए जब मैं गाड़ी से उतरा तो गिल्ली में मौजूद हर शख्स मेरी जानिब मुतवज्जे होने पर मजबूर हो गया था। कुछ मेरा गेट अपडेट था, कुछ ड्रेसिंग ने मेरी अच्छी खासी टोर बना दी थी। कद काठ और जिस्मानी लिहाज से वैसे भी मैं फिट था। ऊपर से बड़ी नोकदार मूंछें, दाढ़ी, आंखों पर स्याह चश्मा, हर देखने वाले की आंख मुझ पर ठहरती ना तो और क्या करती। इस वक्त मेरा आंटी फौजिया और उस्मा नजरीन से मिलने को बहुत दिल कर रहा था, मगर भाभी की वजह से मैंने आंटी फौजिया के घर जाने का फैसला मुलतवी कर दिया और गेट की जानिब बढ़ा। अभी मैं गेट नॉक करने ही लगा था कि इससे पहले ही गेट का छोटा दरवाजा खुल गया। जैसे भाभी पहले से मेरी मुंतजिर थी। मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो भाभी बोली, इतनी देर कर दी। मैंने कहा, काफी देर बाद दोस्तों से मिला था, गपशप में देर हो गई। ये कहकर मैं घर का जायजा लेते हुए बोला, भाभी आपने सामान निकाल लिया है?